So we'll start with a very quick revision of what we have learned in the last session. So let's do a quick recap. और अगर आपको याद होगा तो हमने कल बोहर्स मॉडल स्टार्ट किया था और बोहर्स मॉडल इज based on three postulate. So we have Bohr's model, which is based on three postulate. Postulate number one: electron is revolving around the nucleus in circular orbit. और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. That centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and the nucleus. So centripetal force is given by electrostatic force of attraction. Electrostatic force, and this centripetal force, if you remember, is mv square by r, and electrostatic force is 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by r square. One thing that you need to always remember is कि यहाँ पे हम फोर्सेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा, क्योंकि फोर्स इज 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 q1 q2. q1 is charge on proton which is e, q2 is charge on electron which is minus e. तो यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी. नंबर टू, postulate number two says, क्योंकि अब the idea here is the moment you say electron is in circular orbit, सर्कुलर मोशन होता है एक्सिलरेटेड, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट होगा तो इट शुड इमिट रेडिएशन. तो यहाँ पे रेडिएशन इमिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स in which electron does not emit radiation. Such orbits are called as stable orbits, और वही orbits stable होंगे जिसमें angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. फिर ये जो angular momentum है L, this is I omega which is nh upon 2 pi. फिर यहाँ पे I is moment of inertia of electron which is mr square, और ओमेगा एस वी बाई आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. यहाँ पे एक आर और एक आर कैंसल हो गया, therefore you have MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो थर्ड पोस्टुलेट था, क्योंकि एज यू रिमेम्बर कि ये जो बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल इज based on three theories. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहला पोस्टुलेट आया, क्लासिकल थ्योरी से दूसरा आया, तीसरा इज प्लैंक्स रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इमिट कब होगा फिर? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, तो कब करेगा? व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू lower energy level. So whenever electron jumps from higher energy level, nth energy level, to peak energy level, it emits a photon of energy h, which is hc by lambda. तो ये तीन postulates थे, and based on these postulates, if you remember, हमने last session में radius of orbit of electron derive किया था, and to derive radius of orbit we have used पहले दो postulates. We have used first and second postulate. So to derive radius of orbit, we have used first postulate, और first postulate के according mv square by r is 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by r square. एक r cancel, and then you will have from here v square equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by mr. Right? Then also from second postulate, MVR equal to NH upon 2 pi. मतलब यहाँ से V equal to NH upon 2 pi 1 upon MR. इक्वेशन नंबर 5. एक काम करते हैं, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ उसको, इक्वेशन 5 बोल देता हूँ. स्क्वायर कर लो इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ यू कैन सी इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है v स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पीड वेलोसिटी मतलब, राइट. तो राइट हैंड साइड भी होगा इक्वल
तो what you will have here is 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon mr equal to this n square h square upon 4 pi square 1 upon m square r square. जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, mr गया, right? Then what else will cancel out is 4 pi. तो r को शिफ्ट कर दो, r को शिफ्ट कर दिया, तो यू विल हैव हियर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और ये आ गया आपका यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन pi m e square. So this is what you have. So you get radius of nth Bohr orbit from this equation, right? So as you see कि यहाँ पे h square epsilon 0 upon pi m e square ये सब constant है, तो Rn is proportional to n square. Also for n equal to 1, if you put n equal to 1, you get radius of first Bohr orbit, which is h square epsilon 0 upon pi me square, right? Now, if you put value of h epsilon 0 pi m and e, मतलब अगर आप exact value use कर रहे हो तो 0.53 समथिंग मिलेगा. मैंने कल 0.51 कुछ बताया था. It depends on what values of h you are using, what value of epsilon you are using. तो अगर h का exact value लोगे 6.63, epsilon 0 लोगे 8.85 into 10 power something, और h में भी 10 power minus 34 होता है, m is 9.1 into 10 power minus 31, e का वैल्यू होता है 1.9 into 10 power minus 19. तो एग्जैक्ट वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम. गुड. देन एज यू कैन सी ये जो पार्ट है ये आया r1. तो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट rn इज नथिंग बट r1 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर. गुड. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो जस्ट स्टेप्स याद रखना. रेडियस अगर आपको चाहिए तो रेडियस के लिए पहला पोस्टुलेट वहां से v स्क्वायर मिलेगा, सेकंड पोस्टुलेट से v मिलेगा, उसको स्क्वायर कर लो. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा. दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वेट करो एंड देन यू विल गेट Rn. तो यू हैव बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट एंड n स्क्वायर. तो दिस n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देन if you want to find out what is speed of electron in nth orbit, हमने ये स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है. हमारे पास यहाँ पे ये r का फॉर्मूला भी है. just now we have basically derived this formula. तो v के फॉर्मूला में r दिखता है, substitute r. तो when you substitute r in this equation for v, तो आपके पास है v equal to nh upon 2 pi 1 upon mr, and r is h square epsilon 0 square epsilon 0 n square upon pi m e square. तो क्या क्या कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, ये भी हो गया कैंसिल. एक n कैंसिल, एक h और एक h कैंसिल. तो what you are left with is e square upon 2h epsilon 0 n. So this is the equation for speed or velocity of electron in nth Bohr orbit. तो यहां तक हमने कल derive किया था. We have seen up to this point in the last session. Now going ahead. So what we want to do today is to find out what is the energy of electron in nth Bohr orbit. So electron energy, या फिर let us say energy of electron. तो आज हमको energy of electron find करना है. It's a very simple thing, very simple thing. Why? Because आपको पता है पार्टिकल के पास दो ही टाइप की एनर्जी होती है, या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल. Kinetic energy is the energy possessed by a particle. In this case, the particle is electron, which is revolving around nucleus, right? तो revolving मतलब motion है मतलब kinetic energy होगा.
the energy possessed by a particle on account of its motion is called as kinetic energy. And also you have potential energy also. Why? क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना पड़ेगा आपको. Potential energy is the energy possessed by any object, any particle on account of its position, right? जैसे you, me, all the objects here, हम सब के सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. तो एज अ सिस्टम बोल रहा हूँ, अकेला नहीं, आइसोलेटेड की बात ही नहीं हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है. तो एज अ सिस्टम, me and earth, we have potential energy. As a system, you and earth has potential energy. As a system, all of us including earth has potential energy. तो ये हमारे पास जो एटम है, और हम बेसिकली हम स्टार्ट बेसिक से ही कर रहे हैं, हम बाद में जनरलाइज करेंगे. हम सारे इक्वेशंस को बाद में जनरल एटम के लिए करेंगे, पर हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ. तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1, इट इज मूविंग तो है, ऊपर से स्पीड भी निकाला हमने, राइट. नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव, इट इज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, राइट. तो whenever one charge is in the field of another charge, there is potential energy. तो potential energy कहां से आया? Because electron is in the field of proton, मतलब nucleus. Kinetic कहां से आया? Because this electron is moving, right? So ये पता होना चाहिए. So you should know, you should always know this. तो अब सबसे पहला you need to say this, that we know that electron in an atom, हम नॉर्मली तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट इन जनरल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज revolving in the field of positive nucleus. Therefore it has both kinetic and potential energy. Therefore total energy of electron is given by, so total energy of electron is given by kinetic plus potential, kinetic energy plus potential energy, equation number 1. Now kinetic energy find करना है, तो kinetic energy का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर. एंड इफ यू सी, ये mv स्क्वायर ऐसा कुछ हमने देखा भी है, वी हैव सीन इट समवेयर. यू सी mv स्क्वायर कहां से देखा? फर्स्ट पोस्टुलेट. तो इफ यू यूज फर्स्ट पोस्टुलेट, so we know that from first postulate what we know is, हमारे पास इक्वेशन ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर by r is 1/4 pi epsilon 0 e square by r square. Cancel and cancel, और multiplied by half on both sides. तो half mv square, और यहाँ पे half से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन जाएगा, 8 pi epsilon 0 e square by r. Therefore kinetic energy is 1/8 pi epsilon 0 e square by r. Equation number 2. So you have kinetic energy from first postulate. अब क्या चाहिए? पोटेंशियल. अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है, या तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से. नहीं पता तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ. एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, क्योंकि जेईई, नीट, सीईटी, स्टेट बोर्ड हर जगह पे लगता ही है ये. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज 1/4 pi epsilon 0. ये तो हर किसी में ही होगा. Q1 Q2 by r स्क्वायर, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है, तो दोनों चार्जेस दिखेंगे और नीचे r का स्क्वायर दिखेगा. इनवर्स स्क्वायर लॉ. इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है, नॉट बिटवीन टू चार्जेस. इट इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट. तो उसमें सिर्फ सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. 1/4 pi epsilon 0 Q1 by
आर स्क्वायर, राइट। फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का होता है, सिंगल चार्ज का नहीं होता है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R, नॉट आर स्क्वायर दिस टाइम, इट इज बाय आर, राइट। अगर ये याद होता पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 Q1 Q2, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, बाय आर, तो आ गया। तो ये आएगा -1/4πε0 E स्क्वायर बाय आर, राइट। और पोटेंशियल ये सिंगल चार्ज का एट अ पॉइंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज का एट अ पॉइंट होता है, वैसे पोटेंशियल इज आल्सो एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, और वो होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस, एक ही चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो दोनों में से एक। अब आप ऐसा बोल सकते हो, एंड अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको ये भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या फिजिक्स के कोई भी कॉन्टेक्स्ट में, राइट फ्रॉम, इफ यू रिमेंबर, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें सरफेस टेंशन नाम का एक टॉपिक था। सरफेस टेंशन के केस में हमने देखा था कि सरफेस पे एनर्जी होता है, लिक्विड के सरफेस पे एनर्जी होता है। वो कहां से आया? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे जो फिल्म में थे वो नीचे जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वाज डाउनवर्ड्स। तो उन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर आए। अपने आप आएंगे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट? नहीं, वर्क हुआ। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गया? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस। इसके लिए क्या बोला था उसको? सरफेस एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन से आता है, यहां पे वर्क डन से आया। नंबर 2, इफ यू रिमेंबर, याद होने चाहिए चीजें, इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी के केस में हमने क्या किया था? वी टुक अ स्ट्रिंग, वायर, नीचे हमने लोड लगा दिया, लोड लगाया और थोड़ी देर के बाद देखा तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वायर में। तो अपने आप तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, किसने एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया? लोड ने। तो वर्क हुआ वहां पे भी। तो दैट work done was stored in the form of potential energy, which was called as elastic energy. Half load into extension, right? Stress into strain के फॉर्म में भी लिखते हो आप, right? Stress upon 2y ऐसा कुछ तो लिखते हो। Anyways, we'll not go into details of that. तो potential energy always comes from work done. ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें potential energy you will see it is always coming from work. इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वैसा ही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा था, आपके पास एक सोर्स चार्ज है, सम सोर्स चार्ज, लेट अस से QS, इसका फील्ड होगा और आप एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हो। कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से ला रहे हो। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो सोर्स चार्ज की फील्ड इसको अपोज करेगी तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, इसका मतलब वर्क होगा। वर्क कहां गया? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो वर्क था, इट इज ऑलवेज द चार्ज दैट यू आर मूविंग, मतलब मूविंग चार्ज, इनटू पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने इस चार्ज को रख दिया, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, किसका? सोर्स चार्ज का। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1/4πε0 QS बाय डिस्टेंस। तो दोनों में से कोई भी एक आपको पता होना चाहिए। दिस इज बेटर दैट यू राइट लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। तो यू शुड से वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is given by ये potential energy is equal to charge on electron। क्यों? मैंने अभी अभी बताया आपको, किसका चार्ज? जो मूविंग है। मूविंग कौन है? इलेक्ट्रॉन। और वो किसके पोटेंशियल में है? प्रोटॉन के, राइट। मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, राइट। तो यू शुड रिमेंबर दिस। अगर आपको ये पता है तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं डिनोट करूंगा U से,
it is equal to charge on electron minus E. Potential is 1 upon 4 pi epsilon 0 charge on proton upon distance. Distance कितना था दोनों में? R, right? So you will get potential energy as minus 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R. Equation number 3. Now you will say ऐसा कैसा, हमने तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट में पॉजिटिव लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस नहीं लिया, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, राइट? और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये वेक्टर है ही नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर। यहाँ पे नेगेटिव का कुछ और ही मतलब है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आता है तो सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मतलब जहाँ पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, तो जहां जहां फोर्सेस अट्रैक्टिव हो वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का आने का मतलब होता है द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, राइट? और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आएगा, हम देखेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव इज टेलिंग यू द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट? सो एनीवेज, using equation number 2 and 3 in equation number 1, therefore total energy को मैं अभी E से डिनोट कर देता हूँ, टोटल एनर्जी को मैं E से डिनोट कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ डिनोटेड बाय E। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना आया 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R, पोटेंशियल कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। अब ये कितना होता है वो समझने के लिए मैंने आपको 2-3 बार बताया था, वापस बता देता हूँ। 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा। 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा, 1/4 में से 1/2 माइनस करोगे तो माइनस 1/4 आएगा। 1/4 में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/8 आएगा, 1/8 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1/8 आएगा। आप 1/8 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। करके देखो, इफ यू डोंट ट्रस्ट। 4 minus 8 minus 4 upon 32 minus 4/32 is minus 1/8, तो minus 1/8 pi epsilon 0 E square by R. This kind of tricks will definitely increase your speed of calculations whenever required. Okay, so now what you see is ये आ गया आपका टोटल एनर्जी और नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे नेगेटिव का मतलब भी लिखेंगे, लेकिन पहले R के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। R was रेडियस, रेडियस का इक्वेशन h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। तो यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन of R in equation number 4, what you will get is E equal to minus 1 upon 8 pi epsilon 0. Then you have E square by R. R is n square h square epsilon 0 upon pi m e raised to 2. ऐसा ही है, you see, n square h square epsilon 0 pi m e square, right? After you spend little bit of time in deriving this, ये याद रहने लगता है अपने आप। R का n square h square epsilon 0 upon pi m e square, v में ऊपर एक स्क्वायर था, नीचे कोई स्क्वायर नहीं था, चेक करो, है e square upon 2h epsilon 0, नीचे n, गुड। नीचे n ऊपर n, इसका टेंशन ही नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी will decrease as the electron is going away. Radius has to increase, of course. So when you substitute this, cancel, और कुछ cancel है क्या? नहीं है। तो you will have E equal to, एक काम करते हैं इसमें, as you see this, इसको हम minus E और E raised to 4 और मास m अपॉन ये n स्क्वायर को मैं पहले ही अलग कर देता हूं, अलग कर दिया, क्या बचा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
nth Bohr orbit. तो equation 5 gives energy of electron in nth Bohr orbit, right? Simple. या फिर you can say nth orbit anyways, right? अब as you can see, m constant, e constant, a constant, h constant, epsilon 0 be constant. So since m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square is a constant, therefore you will have energy as inversely proportional to 1 by n square. इसका मतलब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जा रहा है उसका एनर्जी कम होते जा रहा है. सो दैट इज व्हाट यू नो. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम इक्वेशन 5 ये नेगेटिव साइन का मतलब बताना बाकी है. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 वी सी दैट total energy of electron is negative, which means the system is a bound system. That is, there is attractive force between electron and nucleus. तो वैसे नेचुरल भी है, अगर एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट? दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, रिपल्सिव होगा दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, तो फोर्स हो गया रिपल्सिव. और जहां जहां पे नेगेटिव साइन दिखेगा टोटल एनर्जी में, राइट? सो इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू अर्थ एंड सैटेलाइट सिस्टम. फॉर एग्जांपल नेचुरल सैटेलाइट मून एंड अर्थ, जब आप इस सिस्टम के टोटल एनर्जी की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल इफ यू find out what is the total energy of moon revolving around earth, it will be negative. Potential energy of earth moon system will be negative. Potential energy of you and earth as a system will be negative. Potential energy of artificial satellite and earth will be negative. तो जहां जहां पे ये नेगेटिव आया मतलब वहां वहां पे अट्रैक्टिव मतलब बाउंड सिस्टम है, राइट? तो नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू दैट द सिस्टम इज बाउंड सिस्टम. फिर आप बोलोगे वहां पे एक मास पॉजिटिव एक मास नेगेटिव, तो नहीं होता. वहां पे डेरिवेशन करने के बाद वो अपने आप नेगेटिव आ जाता है व्हेन यू डिराइव पोटेंशियल एनर्जी. गुड. देन वंस यू नो दिस, सिमिलरली जैसे हमने पहले ये जो आर में जितने भी कांस्टेंट्स थे, हमने पहले तो बोला कि पहले ऑर्बिट का देख लेते हैं. पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 डाली तो जो भी मिला वो बन गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विच इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. सिमिलरली for n equal to 1, you will have energy of electron in the first orbit E1 as minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square, और n तो 1 हो गया तो 1 by 1, right? तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू 6.63 into 10 power minus 34, epsilon 0 की वैल्यू 8.85 into 10 power minus 11. ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद और उसको ev में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि ये जूल में आएगा, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू ev you get minus 13.6 electron volt, right? So when you substitute this value in equation number 5, m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square, ये 13.6 आया आपके पास ev में. तो when you substitute this in equation number 5, therefore equation 5 will become En equal to minus 13.6 by n square ev.
तो अगर आपको पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड करना है तो n की वैल्यू 1, दूसरे में करना है तो n की वैल्यू 2, मतलब 13.6/4, तीसरे में करना है तो 9 डिवाइड बाय 9 होगा, चौथे में करना है तो डिवाइड बाय 16 होगा. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different orbits. Therefore, energies of electrons in different orbits are minus 13.6, minus 13.6/4, minus 13.6/9, minus 13.6/16. सबके सब EV में है, all are in EV. तो मैंने नहीं लिखा तो वो EV में है, समझ लेना. They are all in EV, electron volt. So they are all in electron volt. So on so forth. Okay, मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे बोल देता हूँ. Energies of electrons in EV. Good. तो समझ लेना ये EV में है. Fine. अब आपको पता होना चाहिए something which is called as binding energy. देखो ऐसा है, what you know is, you know that electron in the first orbit, या फिर in any orbit, अगर first नहीं बोलना हो तो in any orbit, energy of electron in any orbit is given by वो इक्वेशन हमने बनाया minus me⁻⁴/8 h²⁴ नेगेटिव मतलब सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव फोर्स है. मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो मुझे उसको एनर्जी देना पड़ेगा. तो अगर पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू फ्री इट विल बी प्लस 13.6, क्योंकि माइनस 13.6 ऑलरेडी है, तो उसको प्लस 13.6 दोगे तो वो फ्री होगा, राइट. कम से कम, उससे ज्यादा दिया तो चलेगा. इट इज जस्ट लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इफ यू गिव plus 13.6, the electron is just free without any kinetic energy. But if you give more, then it will take away remaining part of the energy as kinetic energy, right? So the minimum amount of energy that must be given to an electron, or it is required to free the electron from its orbit, is called as binding energy. So the minimum energy required to free an electron from atom or from its orbit. From atom ज़्यादा better रहेगा. From an atom is known as binding energy. Good, right? तो अब हमें क्या पता है? हमें पता है nth ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना. We know that electron in nth orbit has energy. If you want, you write down the whole equation, वो me के फॉर्म में, और if you want, you write down minus 13.6/n² eV. So we know that electron in nth orbit has energy En equal to minus 13.6/n² eV. So to free electron, to make electron free, the minimum energy required is plus 13.6/n² eV. तो इसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी. Thus binding energy is plus 13.6/n² eV.
मतलब जितना टोटल एनर्जी है उतना विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ना, अरे नेगेटिव साइन, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा विद अपोजिट साइन। ओके, तो जो भी टोटल एनर्जी है उतना ही विद अपोजिट साइन। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो वहां पे नेगेटिव। गुड, पर वो ऐसा होगा नहीं क्योंकि बाउंड सिस्टम में ऐसा होता नहीं, राइट? सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी विथ अपोजिट साइन। इन दिस केस इट इज पॉजिटिव। इसी को बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाई? क्योंकि अब ऐसा है, व्हाट इज आयन? शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले लिया और वो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, मतलब डोमिनेटिंग चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन बन गया। सो यही एनर्जी है जिसने एटम को आयन बना दिया, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल। Binding energy is also known as ionization energy. Good. So if you have understood up to this point, अब तक बेसिकली इतना पिक्चर क्लियर होना चाहिए। Nucleus and electrons are there in circular orbit around nucleus with nucleus at its center. 3 postulate, radius, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी। एनर्जी टोटल आता है काइनेटिक और पोटेंशियल के एडिशन से, और वो आता है नेगेटिव। और नेगेटिव होता है बिकॉज द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। और फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इतना पता होना चाहिए कि जितना टोटल एनर्जी है उसका अपोजिट साइन के साथ अगर एनर्जी सप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। गुड। नाउ अगर मैंने जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना नहीं, उससे कम एनर्जी सप्लाई किया विद ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन, तो व्हाट हैपेंस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन हमको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमको स्टडी करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, एक एक टर्म बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स। वेल बाय द वे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख रहे हैं, पर आगे जाके हमको जनरल फॉर एनी एटम स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ हाइड्रोजन ही फोटॉन्स इमिट करेगा, अदर एटम्स कैन आल्सो इमिट। लेकिन सबसे पहला डिटेक्शन हुआ था इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और वैसे भी हाइड्रोजन सबसे बेसिक एटम है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। So we will first discuss in detail hydrogen spectrum and then we will generalize it. हम बोलेंगे अगर हाइड्रोजन नहीं होगा कोई और होगा, हीलियम होगा या आर्गन होगा। वो पता है हमको, आर्गन इनर्ट गैस, वो घर में जो ट्यूबलाइट होता है उसमें हम यूज करते हैं और वहां से लाइट आता है। इसका मतलब वो भी तो लाइट इमिट कर रहा है, मतलब उसका भी तो स्पेक्ट्रा है, तो हम उसको भी जनरलाइज करेंगे। बट वी विल स्टार्ट विद दिस। और इसमें हम दो केसेस मतलब नॉट 2 केसेस, it is just a timeline of the discovery, timeline not social media, timeline of discovery of the phenomena. तो सबसे पहले we will see something called as Balmer relation, और इस रिलेशन को हम एम्पेरिकल रिलेशन बोलने वाले हैं, क्योंकि ये एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल मतलब विच इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब हाइड्रोजन एटम से फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या, बाल्मेर बेसिकली ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, मतलब व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस। अब सिर्फ हीटिंग से नहीं होता है, ऑफ कोर्स यू कैन सप्लाई एनर्जी टू अ गैस इन डिफरेंट वेज। एक तो हीट कर दो, दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसमें से करंट पास कर दो। तो करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। दिस इज समथिंग विच विल कंफ्यूज यू, तो ध्यान देना अच्छे से। एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? एक्चुअली एटम कहीं नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, राइट? तो होता क्या है,
यू नीड टू नो दिस। फिर हम वापस से आएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो यू नीड टू नो कि मैं फिलहाल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, बेसिक है, सबसे बेसिक है, तो हम इसकी ही बात करेंगे। व्हेन यू से दैट यू हैव हाइड्रोजन एटम, और इट इज वेरी ऑब्वियस कि हाइड्रोजन एटम बोला मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, राइट? और एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट दिस डज नॉट मीन कि इसके बाहर के ऑर्बिट्स है ही नहीं। इट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बाहर के ऑर्बिट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर एम्प्टी ऑर्बिट्स, देयर आर ऑर्बिट जस्ट लाइक दिस एम्प्टी बेंचेस, फ्यू ऑफ बेंचेस आर एम्प्टी हियर, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे जाके बैठ नहीं सकते। सेम doesn't mean that electron cannot go to higher state, लेकिन वो जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे कोई बुला रहा है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आगे आके बैठो, राइट? तो we'll see, compare, analogy, it is important for you to remember. First of all, the first question is why, if there are so many places to sit, so many positions for electron to occupy, वो पहले ही orbit में क्यों है? Because anything in this universe tries to achieve minimum potential energy configuration. तो इसका minimum potential energy है पहले ऑर्बिट में। जितना, मतलब याद रखना, ये आपने 11 में सीखा है, डेफिनेटली सीखा है इन 11th स्टैंडर्ड। यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम सीखे थे आपने, 3 टाइप्स। You have seen 3 types: stable, unstable, neutral equilibrium. So anyways, so what happens is anything is stable when there is minimum potential energy. Good. तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में है तो इट इज इन its most stable state because the potential energy of the system is the minimum, least, right? Then what may happen is, अगर मैंने somehow इस एटम को एनर्जी दे दिया और वो एनर्जी ये +13.6 eV जितना नहीं है, उससे कम है, क्योंकि अगर +13.6 या उससे ज्यादा दिया तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा चलो जाता हूं मैं, गो, आयोनाइज हो गया। तो हमने नहीं दिया, अभी हमने उतना नहीं दिया तो क्या हुआ? हमने कम दिया तो फिर देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा हो सकता है कि वो, वेल बाय द वे, वो ऊपर के ऑर्बिट्स में जा सकता है, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है। सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, विल डिस्कस दोस आल्सो। वेल बाय द वे, n इक्वल टू 1, ये जो पहला ऑर्बिट होता है इसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम भी बन जाता है, राइट? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकेले इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी डजंट मेक एनी सेंस। फिर जो ऊपर का स्टेट है, मतलब सेकंड ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कुछ बुक में गलत दिया है, सेकंड ऑर्बिट को बोल दिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड, उसके बाद का ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड। तो याद रखना, मैं ऑर्बिट नंबर बता देता हूं, ऑर्बिट नंबर n और एक्साइटेड स्टेट। पहला ऑर्बिट ये होता है ग्राउंड स्टेट, इसका एक्साइटेड स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, इट इज ग्राउंड स्टेट। दूसरा ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड, थर्ड ऑर्बिट इज सेकंड एक्साइटेड, फोर्थ ऑर्बिट इज थर्ड एक्साइटेड, करेक्ट? इट इज जस्ट लाइक हार्मोनिक्स, overtones, 5 open at both ends or string attached at both ends. First harmonic is fundamental, then first overtone is second harmonic, right? First excited is second state, second orbit, second excited state is third orbit. So it is just like that. तो याद रखना, अब ये इतना पता होना चाहिए। तो first of all what can happen is, when you give energy to this atom, electron can take up this energy and it can go to excited state. मान लो वो फोर्थ ऑर्बिट में, मतलब थर्ड एक्साइटेड में गया, मान लो, इमेजिन। अब हुआ क्या, इससे क्या हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के ऊपर गया
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसको हम बोलते हैं एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह पे गया है, उसी एटम में है एक्साइटेड स्टेट। जितना भी एनर्जी लगा उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। इट इज नॉट आयोनाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ, इट इज एक्साइटेशन एनर्जी। और यू शुड ऑल्सो नो, इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं होल। ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड। सो वी से व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स पोजीशन देयर इज जनरेशन ऑफ होल। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, नेगेटिव छोड़ के गया, तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव। लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव हियर, राइट? गुड। So what happens is, after absorbing energy, electron is going into higher available energy states, energy levels. When electron leaves, there is deficiency of electron, lack of electron, which means there is a hole, right? अब ऐसा है कि what will happen कि क्योंकि मैंने बताया आपको, just now I told you कि there is lack of electron, मतलब hole, तो ये जो lack of electron है, it will try to pull this electron back, come back to your own position, right? So this, because of this, the lifetime मतलब ये कितना टाइम स्पेंड करेगा एक्साइटेड स्टेट में, it is very small. The lifetime of electron in excited state is very small, 10 power minus 7 minus 8 second, right? क्यों? क्योंकि वो स्टेबल स्टेट नहीं है, मैंने इसलिए बताया स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल स्टेट है। गुड। तो अब बात ऐसी है कि व्हाट हैपेंस इज, एनर्जी लेके सीधा पहले से चौथे पे जंप तो मार दिया, और वापस आते वक्त जरूरी नहीं है कि 4 से डायरेक्टली 1 पे आएगा। इट कैन बेसिकली टेक वेरियस स्टेप्स। इट कैन गो फ्रॉम 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. It can go 4 to 3, 3 to directly 1. It can go 4 to 2, 2 to 1. So there are various possibilities. तो वो इंटरमीडिएट स्टेप्स के थ्रू भी आ सकता है। तो जब वो इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू आएगा, और मैंने आपको ये हमने इसके लिए ही डिराइव किया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक गिवन ऑर्बिट में फिक्स होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करके ही आएगा। थर्ड पोस्टुलेट, whenever there is transition from higher state to lower state. So whenever there is transition from higher state to lower state, there is emission of energy. मैंने photon नहीं बोला, मैंने emission of energy बोला, but third postulate tells you there is energy emission of photon, क्योंकि emission of energy तो heat भी जनरेट होता है, राइट? जब हीट लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे आता है, तो हीट भी जनरेट हो सकता है, होता है। ये आप अगर इंजीनियरिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में सीखोगे, लेजर्स, वर्किंग ऑफ लेजर्स, यू विल सी। बिकॉज अभी तो नहीं, अभी जो आप लेजर लाइट यूज करते हो दैट इज सेमीकंडक्टर बेस्ड लेजर, लेकिन जो पहले लेजर बनाए दे हैड बिग प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि ये जब ट्रांजिशन हो रहा है तो एक आधा ट्रांजिशन लाइट दे देगा, फोटोन दे देगा, बाकी ट्रांजिशन यूज टू जनरेट हीट, तो कूलिंग सिस्टम लगेगा फिर। तो रिमेंबर दिस। बट एनीवेज, वी आर फोकसिंग ऑन फोटॉन्स हियर, क्योंकि थर्ड पोस्टुलेट को एक्सटेंड करना बाकी था। सो व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो पहला क्वेश्चन कि व्हाई इलेक्ट्रॉन विल गो टू हायर स्टेट, बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के तरीके होते हैं। कैसे? You can make the electrons go to higher states by heating, by passing electric current, or by incident photons. Photons भी आएंगे, photons particle behavior show करेंगे, energy transfer करेंगे, electron जाएगा ऊपर के state में, right? Now, Balmer, he was the first one to notice some kind of lines coming from this. और जब ये नीचे आएंगे तो ये जो लाइंस इमिट हो रहे हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक, व्हाई कैरेक्टरिस्टिक? क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हर एक एटम का प्रॉपर्टी है। एटम टू एटम
मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट। हाइड्रोजन के लिए अलग लाइंस मिलेंगे, हेलियम के लिए अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम इमिट हुआ, कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। वो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है, हर एक एलिमेंट सेम वेवलेंथ नहीं देगा आपको, तो इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। गुड, यहां तक क्लियर? नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज this all happened in around roughly 1885. So that is why sometimes remembering years is also important. Of course we are not learning history, but जरूरी है, क्योंकि जॉन डेल्टन का थ्योरी आया 1808, उसके बाद थॉमसन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया 1897, उसका थियरी एक्सेप्ट हुआ 1903, उसके बाद आया बोहर्स। मतलब तब तक तो पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज भी होती है, राइट? इमेजिन। और उस टाइम पे this guy saw some lines coming and he actually detected, calculated the value of wavelength. So the value of wavelength was around 4 wavelength थे, एक था some kind of yellow orange color में 6000 something if I'm not wrong, it was 6368. So let me just check, it was 6368 or something like that, 6563. So 6563 angstrom. दूसरा था 4000 something 4868. Then third was 4341, and then the last one was 4202. राइट? अब 4 ही मिलेंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये 4 ही क्यों मिले? क्योंकि ये चारों विजिबल में है। विजिबल में है तो वो देख सकता था कि ये 4 दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिखेंगे। अगर इंफ्रारेड में होगा तो नहीं दिखेगा, अगर यूवी में होगा तो भी नहीं दिखेगा। सो व्हाट ही कुड डिटेक्ट इज दिस 4। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब आप सीरीज सीखोगे इन द नेक्स्ट सेशन, देयर आर 5 सीरीज, लीमेन, बाल्मेर, पास्चन, ब्रैकेट, पुंड। लेकिन सबसे पहला डिटेक्शन हुआ बाल्मेर। गुड। अब इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग थिंग, तब तो पता नहीं था ना कि न्यूक्लियस छोटे से रीजन में होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में तो फोटोन इमिट होगा। बट ही हैड टू एक्सप्लेन समहाउ। उसने एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट ही गेव अ फॉर्मूला। ही सेड ओके, मेरे पास 4 वेवलेंथ है, मैंने बहुत मेहनत की, फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है ये एक्सप्लेन करता है। ये फॉर्मूला में जब आप n की वैल्यू 3 डालोगे, या फिर 4 डालोगे, या 5 डालोगे, या 6 डालोगे, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज फॉर ईच ऑफ दिस, n equal to 3 will give exact what number from here? n equal to 4 डालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो you get another number. n equal to 5 डालोगे तो you get third wavelength, and n equal to 4 will give you 4 wavelength, where r is Rydberg constant, which is 1.097 into 10 power plus 7 SI units, which is 1 upon meter, of course, है ना? ये नीचे इधर मीटर में है तो ये 1 upon मीटर आएगा, मतलब मीटर इनवर्स। गुड। तो दिस फॉर्मूला was purely based on observed, मतलब एक्सपेरिमेंट। तो इसको बोलेंगे, ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। किसने दिया? बाल्मेर। So this is called as Balmer empirical relation. Completely he just went on playing with numbers. मैं एक काम करता हूं, मैं n की वैल्यू ये डाल के देखता हूँ, यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, फिर n की वैल्यू मैं 100 लूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, r की वैल्यू, so on so forth. So he just keep on putting different values, and finally he arrived onto this formula, and he said, okay, this is something which is giving me exactly 4 lines. For 2 square in the first term and n square in the second term, put n equal to 3, then 4, then 5, then 6, then you get these 4 values. और r की वैल्यू है 1.097 into 10 power 7. Now इसको एम्पेरिकल इसलिए बोला क्योंकि बेस्ड ऑन ओनली एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस बेसिकली। फिर आया बोहर का इक्वेशन, बोहर रिलेशन। नाउ बोहर रिलेशन, Bohr's relation, it is purely based on theory. क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही था, बोहर का मॉडल आने के पता था, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डू मेक ट्रांजिशन। और थर्ड पोस्चर तो बता ही रहा है आपको, क्या बता रहा है? En minus Ep equal to
hc/λ। और En आपको पता है, you know what is En somewhere over here, m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square 1 by n square with a negative sign. This is energy of electron in nth orbit, nth higher orbit. मैं pth lower orbit की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिर्फ p. I will just substitute p instead of n and then subtract en minus ep, right? और सारा का सारा simplification करने के बाद, that we will discuss in the next session of course, but you need to know basic idea today. now तो ऐसा है, वो सारा manipulation simplification करने के बाद what Bohr got was 1 upon lambda r 1 upon p square minus 1 upon n square। और अगर आप बाल्मेर रिलेशन की बात कर रहे हो तो बाल्मेर रिलेशन के लिए p की वैल्यू होती है 2 क्यों? क्योंकि दिस इज the orbit at which the electrons are making transition from higher levels, याद रखना, राइट? यहाँ पे भी देखो 2 और n की जगह मैंने 2 नहीं लिखा, I have written 3 4 5 6, राइट? तो here बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट पे नहीं होता है, फर्स्ट स्टेट पे होता है, एक्साइटेड स्टेट। कहां से होता है? ऊपर के लेवल से। तो ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2 and so on so forth। तो दिस इज थियोरेटिकल, और सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आया इन द वैल्यू ऑफ r 1.093 into 10 power 7। So from theory you get Rydberg constant as 1.093. Here it was 1.097. So close. So you see बोहर मॉडल को theoretical, ये theoretical है, this is theoretical। एनर्जी का इक्वेशन आपने कहां से फाइंड किया? थ्योरी से किया ना। टोटल एनर्जी में क्या क्या फाइंड किया था? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक कहां से लाया था? फर्स्ट पोस्टुलेट। पोटेंशियल कहां से लाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। लुक एट द एग्रीमेंट, दे आर एग्जैक्टली मोर और लेस एग्जैक्टली द सेम। इसका मतलब बोहर रिलेशन शोज दैट जो बाल्मेर का जो empirical formula है which is purely based on observation is correct, which also basically made it sure कि yes, जो atomic structure की हम बात कर रहे हैं, nucleus with surrounding orbits, electrons are in orbit, that is right, that is correct। So in the next session we will derive this relation and we'll study in detail hydrogen spectrum।